The show with our first lecture by Dr. Rajkumar R. Chaube. He is a specialist in dentistry in the field of oral and maxillofacial pathology and microbiology. He is a master in implantology, performing both basal and conventional implants. He is a keen practitioner and has special interests in laser dentistry and using lasers since 17 years in his clinic. He has specialized training in the field of plastic periosurgeries and implants in the conjunction with bone graft and augmentation. He has published his 2 publications in British Medical Journal and got Best Paper Presentation Award in National Conference of Oral Pathology. He has conducted successful lectures and hands-on courses on cytology and biopsy. He has many publications in national and international journals under his name. He is a successful renowned dental practitioner since past 18 years in the Ghazipur district. Other than medical field, he has been the chief patron of the Bodybuilding Association. So now I would like to call Dr. Rajkumar Chaube on the stage and give a speech. Here today, topic power of laser in the dentistry. I'm thanking Dr. Rajkumar for inviting me for such a big beautiful audience. So, as we know that laser is used everywhere in the field of architecture or in the field of photography, in the movies or in the medical field, everywhere the laser can be used. So, what is the use of laser in the dentistry that I want to tell you? My motto is 100 years of mechanical advances will occur in the field of cutting. कटिंग में क्यों एडवांसेस चाहिए हमको? क्योंकि नॉइस होता है, वाइब्रेशंस होता है, पेशेंट्स आर फीलिंग वेरी डिस्कम्फर्ट विद द गोइंग टू द डेंटल प्रैक्टिस. तो हमको वो चीज को दूर करने के लिए हमको लेजर को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा अपने फील्ड में, क्योंकि हम लेजर को जब इन्वॉल्व करेंगे अपने फील्ड में तो हमको पेशेंट को लगेगा कि ये क्लिनिक हमारे अगल बगल के क्लिनिक से सबसे अलग है. So, in the 20th century, there are 5 greatest inventions occur in the field of the science. In that, laser is one, where the French government has launched the memorial stamp for that. So, Albert Einstein was the first scientist who proposed the theory stimulated emission of radiation in the 1970s. But this theory is the advanced work of the theory which was proposed by the Niels Bohr in the 1930s, 4 years before. He has given the theory of spontaneous emission. What is the difference between spontaneous emission and the stimulated emission? That will I talk later on. Of laser, because हम लेजर यूज तभी करेंगे जब हम उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम जानते रहेंगे. पता होनी चाहिए कि कैसे हम लेजर का इस्तेमाल करते हैं. नॉर्मल लाइट से ये लाइट क्यों अलग है, स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या डिफरेंस है. मैं यहाँ केवल पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं ये बताने आया हूँ कि लेजर आप रूटीन प्रैक्टिस में कैसे यूज करेंगे, वो चीज मुझे यहाँ बताना है. फिर लेजर की सेफ्टी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज करते हैं तो उसकी सेफ्टी की हमको जानकारी होनी ही चाहिए. लेजर के जो डायरेक्ट यूज है, मतलब डायरेक्टली यूज करें या असिस्टेड फॉर्म में यूज करें लेजर, वो भी पता होना चाहिए. मेरे पूरे प्रेजेंटेशन का एक ही मोटो है कि हम लेजर को भली भांति जान जाए और उसका इस्तेमाल हम प्रॉपरली कर लें. Goldman has given the terminology that laser is the acronym word. It is light amplification by stimulated emission of radiation. मतलब किसी भी लाइट को एम्पलीफाई करते हैं बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स, चाहे वो केमिकल सोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सोर्स हो, कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स लगा के हम नॉर्मल लाइट को स्टिमुलेट करेंगे और रेडिएशन फॉर्म में उसको रिलीज करेंगे. Pioneer for the use of the laser. The first laser was the Rookie laser, that is the solid laser. And if any one of the dentists is deciding to use the laser in his clinic, I think he is on the right track. So everybody has to be involved in this laser practice in his clinic. हम जानते हैं कि लेजर का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, उस स्पेसिफिक वेवलेंथ से उसकी एक स्पेसिफिक लिमिटेशन है, उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी है जो हम उसका इस्तेमाल करके हम अपने प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं. सॉफ्ट टिश्यू लेजर अलग है, हार्ड टिश्यू लेजर अलग है. तो मेरा लेक्चर खत्म होने तक के आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा सॉफ्ट टिश्यू लेजर है, कौन सा हार्ड टिश्यू लेजर है और कहाँ कौन सा लेजर यूज करना चाहिए.
Goldman sir has first used the laser in the dental caries, treatment of the dental caries, and Songes in 1965 when used the Ruby laser, that was the solid laser in the treatment of the dental. Then he noticed that this Ruby laser vaporizes the enamel, means it ablates the enamel surface. So neodymium doped yttrium aluminum carbonate laser is the laser which are used for the caries prevention, and carbon dioxide laser is used for the dental caries treatment by Messler, and it is US approved. US Food and Drug Administration approved laser, carbon dioxide laser. So these are the learning objectives of my presentation. In that we understand the basic physics, we understand the different modes of the emission, the continuous emission of the radiation, pulse emission, chopped बोलते हैं उसको, मतलब पल्स फॉर्म में भी लेजर निकलेगा, कंटिन्यूस फॉर्म में भी लेजर निकलेगा, कहाँ किसका इस्तेमाल करना वो भी हम जानेंगे, और उसका थर्मल इम्पैक्ट क्या है, हमारे बायोलॉजिकल टिश्यू में थर्मल इम्पैक्ट क्या है, जैसे हाइपरथर्मिया हो गया, कोएगुलेशन हो गया, डीनेचुरेशन हो गया, वेपोराइजेशन हो गया, कार्बोनाइजेशन हो गया, ये सारे इफेक्ट होंगे और उसको हम कैसे इस्तेमाल, कोई भी चीज है उसके प्लस पॉइंट्स भी है और निगेटिव पॉइंट्स भी है, तो हम प्लस पॉइंट्स का उसका कैसे यूज करेंगे, निगेटिव पॉइंट्स क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, वो चीज भी हम लोग समझेंगे आगे चलकर। तो these are some terminology which I use in my presentation. Subsystem, cooling subsystem और रेजोनेटर प्लस इसमें ओपनिंग है इसकी जहाँ से वो लाइट निकलेगा, चाहे वो कंटिन्यूस फॉर्म में निकले, चाहे सॉफ्ट फॉर्म में, वेव फॉर्म में निकले, जो एक्टिव मीडियम होगा वो सॉलिड गैस लिक्विड कुछ भी हो सकता है। पावर सप्लाई किया, कंट्रोल पैनल हमने पैर से दबाया, ये सब मशीन में फूड कंट्रोल में सब दिया हुआ मशीन के अंदर पूरा ही, वो फिल्टर विद ब्रेन दिया हुआ है, बाकी ब्रेन हमको लगाना पड़ेगा, हमको पता होना चाहिए कि हम इस लेजर का कहाँ इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे लगा के भूल जाए, बात करने में बिजी रह जाए, वो एक ही जगह पे हील करने के बजाय, फोटो बायोमॉड्यूलेशन करने के बजाय वो उसको डैमेज कर दे। तो दो फिल्टर हमको यूज करना है, एक अपने नॉलेज से और एक कंपनी वालों ने प्रोवाइड किया हुआ है। काफी लोगों को दिखाया, ये सर्जन्स को भी दिखाया, डेंटिस्ट को भी दिखाया, कुछ डेंटिस्ट जो बीडीएस है उनको दिखाया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बीडीएस मुझे मतलब है खाली अपने अपडेट रहने से, तो कोई भी अपडेट है तो निश्चित रूप से उसको कुछ ना कुछ ज्यादा जानकारी है तभी वो अपडेट है, अपडेट रहना जरूरी है, चाहे वो बीडीएस हो चाहे एमडीएस हो, मुझे उससे मतलब नहीं। ये पेशेंट जो 6 महीने का बच्चा है, सेंट्रल इंसाइजर अपर लोअर खाली रखे हुए थे, खेलते खेलते गिर गया, काफी डॉक्टर को दिखाया, सर्जन्स को, पीडियाट्रिशियन को, सबको दिखाया इसमें, और सब लोगों ने इसको प्रेशर एप्लीकेशन से इसको आराम किया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद दवाई लेके छोड़ दिया कि जाइए आराम हो जाएगा, और ये आराम ही नहीं हुआ इसको, बहुत परेशान हो गया। तो डॉक्टर शिवेंद्र ने मुझे फोन किया कि भाई मेरा एक नॉन पेशेंट है, वो आपके यहाँ जाना चाह रहा है, आप देख लीजिए उसकी ब्लीडिंग 24 घंटे से नहीं बंद हो रही है। तो मैंने सोचा कि 24 घंटे से नहीं बंद हो रही, जैसे कि मैं ओरल पैथोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ सिस्टमिक डिसीज हो सकता है विटामिन ए डिफिशिएंसी हो, कुछ हो, मैंने आप भेजिए मैं उसको देखता हूँ। जब ये बच्चा मेरे पास आया तो इसके फादर भी फेंट हो रहे थे और मतलब इसकी मदर भी फेंट हो रही थी, बच्चे को लेकर 24 घंटे से ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रही है, लूजिंग होता ही जा रहा है एक पॉइंट से, देखिए क्रीम के पास से, और पूरा गला भर जाता था। ये लोग बताते हैं उंगली से ऐसे निकालते थे गले से बच्चे का। ये मेरा लेजर है, 2 वॉट पे मैंने कंटिन्यूस मोड पे ये लेजर अप्लाई किया, 2 सेकंड के अंदर ये ब्लीड स्टॉप हो गया, 2 सेकंड। और ये कॉन्फिडेंस क्यों आया मेरे पास, क्योंकि मेरे पास लेजर था। लेजर का बस मैंने ऐसे लगाया 2 सेकंड के लिए, नॉन कॉन्टैक्ट मोड में लगाया, मतलब उसको कॉन्टैक्ट भी नहीं किया मैंने उस एरिया को, और ब्लीड स्टॉप हो गया। और पेशेंट मैंने रिसेप्शन में बैठने के बोला, आप बैठिए, चेक करिए और मुझे बताइए, तब उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। चेहरे के ऊपर जो है केराटिन हुआ था, ब्यूटी हैम्पर कर रही थी बच्ची की, लेजर अप्लाई किया, तुरंत जब एब्लेट किया तुरंत अपर का एरिया निकाला मैंने। 1 हफ्ते बाद देखिए थोड़ा सा रीजन बचा हुआ है, क्योंकि पॉइंटर काम नहीं कर रहा है, और 2 हफ्ते बाद एकदम आए। ब्यूटी कंसर्न तो सभी लोग हैं आजकल, और ऐसे छोटे छोटे दाग जो है, हर दाग अच्छा नहीं होता है, ये दाग, ऐसे दाग आपको नुकसान पहुंचाता है। मैडम ज्यादा डिस्कस करेंगे इस सब दाग के बारे में, मेरा टॉपिक नहीं है। तो ये लेजर का फायदा है इसमें
वेंट्रल सरफेस ऑफ द राइट साइड ऑफ द टंग में इतना बड़ा लिथोप्लास्टिक लीजन है, व्हाइट कलर का लीजन है। एब्लेशन सिंपल लेजर है तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। ये मेरा यूनिट है, कल इसी पे डेमो होगा आप लोगों का। स्ट्रोक फॉर्म में हमने वर्क किया, इसको डायरेक्ट कंटिन्यूस नहीं अप्लाई किया है। स्ट्रोक फॉर्म में यूज कर रहे हैं, उसको एप्लाई कर रहे हैं अपर लेयर ऑफ मतलब इपिथेलियम को हम खाली निकाल रहे हैं। इमीडिएटली आफ्टर ट्रीटमेंट नो ब्लीडिंग, कोई ब्लड नहीं आ रहा। एक हफ्ते बाद देखिए थोड़ी सी स्कारिंग है, लेकिन 3 हफ्ते बाद देखिए नॉर्मल है। कंपेयर करके दिखाता मैं आपको। इतना बड़ा लिथोग्राफ लीजन हमको लगा 3 से 4 सेंटीमीटर का एरिया गायब। बहुत दिन इसने लाइकोपिन खाया, बहुत दिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड खाया, कई डॉक्टरों को विजिट किया, सिंपली गायब। लेजर का ये फायदा। पल्स मोड पे हम काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस मोड पे शिफ्ट किया उसको हमने। ये मेरी क्लिनिक है। जो आपका वर्किंग लेंथ होता है उससे 2 से 3 मिलीमीटर शॉर्ट आपका लेजर फिलामेंट होना चाहिए। मतलब अगर 18 मिलीमीटर का वर्किंग लेंथ है तो ये 16 या 15 मिलीमीटर का होना चाहिए, और इसके जो ओपनिंग होने चाहिए वो सर्कमफ्रेंशियल ओपनिंग होनी चाहिए। सोडियम अपोक्साइड से इरिगेट करिए, सोडियम अपोक्साइड उसी में रहने दीजिए और टिप को डालिए उसके अंदर। देखिए हम लेजर पे शॉर्ट कर रहे हैं, 20 मिलीमीटर था उसको 18 कर रहे हैं। किनारे में डालेंगे, राउंड करते हुए सर्कुलेटरी घुमाते हुए इसको डालेंगे नीचे और फिर इसको निकालेंगे। ये लेजर असिस्टेड आरसीटी है। एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशन से पहले करना है। ये सारे मेरे ही केसेस हैं। मस्कुलर मालफॉर्मेशन का केस दिखा रहा हूं मैं आपको। लेडी पेशेंट मस्कुलर मालफॉर्मेशन, उसके राइट साइड के फेस पे इतना बड़ा रेड कलर देखिए उसका चेरी की तरह एकदम कलर है, रेड कलर का 2 सेंटीमीटर के आसपास का एक ग्रोथ था, उसको मैं निकाला। लेजर का इस्तेमाल आप पार्टिसिपेट करें, लेकिन 1 महीने बाद देखिए उसका चेहरे पे कुछ पूरा गायब हो गया। चूंकि पैथोलॉजिस्ट हूं मैं और आज ओरल पैथोलॉजी, नेशनल ओरल पैथोलॉजी डे है, हिस्टो पैथोलॉजिकल पे बात करना ही चाहिए हमको। इस पे हिस्टोपैथोलॉजी स्कैनर में आप देखिए बहुत सारे ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं और उसके अंदर आरबीसी, रेड कलर के आरबीसी सारे दिख रहे हैं उसके अंदर। हाइयर मैग्नीफिकेशन में देखिए सारे इंडोथेलियल सेल्स दिख रहे हैं, ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, पूरा इन्फ्लेम है, मतलब ये पूरा मस्कुलर मालफॉर्मेशन था। अगर इसमें आप ब्लेड लगा देते ऐसे केस में तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, बहुत प्रोफिशली ब्लीड करता। लेजर होने का ये कॉन्फिडेंस है कि आप लेजर से आराम से उस एरिया को निकाल सकते हैं और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए कह सकते हैं, बायोप्सी के लिए कह सकते हैं। कुछ बायोप्सी के दौरान कोई भी टिश्यू आता है आपके पास तो उसको इन्वेस्टिगेट करिए, उसका डॉक्यूमेंट अपने क्लिनिक में बनाइए और अपने क्लिनिक को रिसर्च सेंटर की तरह यूज करिए। आपको 1 साल 10 साल बाद ये पता चले कि आपने अपने क्लिनिक में इतने तरह के केसेस किए, मतलब बायोप्सी किया आपने तो इसमें रिएक्टिव लीजन्स को इतने डील किया आपने प्री मैलिग्नेंट लीजन को इतना डील किया, वस्कुलर लीजन्स को इतना डील किया, कैंसर मैलिग्नेंट लीजन को आपने इतना डील किया, बिनाइन ट्यूमर्स इतने डील किए। वो कैसे पता चलेंगे? जब आप अपने पास डाटा रखेंगे। तो आप जो भी टिश्यू निकाला कीजिए, कुछ भी निकला करें, कुछ भी नॉर्मल के अलावा कुछ भी निकले उसको तुरंत आप हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजिए, उसका रिपोर्ट आए, उसका एक डायरी बनाइए, उस पर डाटा तैयार करिए ताकि आपका क्लिनिक रिसर्च सेंटर बन जाए और बाकी के लोगों से अलग है। अन्य कभी पेशेंट आता है तो उसको मोटिवेट करने भी काम आता है कि भाई हमने 1 साल के अंदर इतने सारे मैलिग्नेंट पेशेंट देखे हैं। मतलब ये डाटा हमारे शहर का है कि हम 10 में से 3 लोग 2 लोग जो है मैलिग्नेंट वैसे क्योंकि गुटखा पान खाते हैं या जो भी खाते हैं वो पता लगाने की कोशिश की। इसीलिए केस हिस्ट्री में डॉक्टर अंकित सिंह राठौड़ अभी बात करेंगे। वो ओरल मेडिसिन में उन्होंने MDS है और वो प्रोफेसर हैं वहाँ पे बरेली कॉलेज में, तो वो केस हिस्ट्री पे बात करेंगे। तो ये डाटा बनाने की आपको आवश्यकता है।
जैसे मैं सिंपल आरसीटी का 7000 चार्ज करता हूँ, सिंपल आरसीटी का। लेजर असिस्टेड करना है, एक विजिट करना है उसको, कोई ऐसा मल्टीपल विजिट बुला नहीं, आप उसको 1000 ऐड कर लीजिए, 1000 बस ऐड कर लीजिए या 2000 ऐड कर लीजिए। नहीं भी ऐड करना है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपने पेशेंट को क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कल जाके वो रिटर्न होकर आपको अच्छा सपोर्ट देगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर अपने कलीग से अलग बनना है तो आपको ये यूज करना ही पड़ेगा। पावर से भी चलेगा और ये खुद भी चार्ज करेगा हमारे मशीन को। ये मशीन बोल रहा था कि लाइट को एक्सटर्नल सोर्स देंगे, लाइट पावर देंगे इसके अंदर, तो ये जनरेट करेगा लेज़र। लेज़र जो जनरेट करेगा वो इस फिलामेंट के थ्रू निकलेगा, ठीक है। तो इसको हमको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना रहता है कि बैटरी के ऊपर इसको रख देते हैं। अगर पावर से नहीं करना है तो बैटरी से भी आप वर्क कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो है बैटरी का कनेक्शन, बैटरी को हम पावर से कनेक्ट कर देंगे। ये लेज़र ऑन हो गया, इस पर सारा चीज़ आता है, सिस्टम सेटिंग, पावर सप्लाई ओके, लेज़र फाइबर एरर, क्योंकि लेज़र फाइबर नहीं लगा इसलिए लेज़र फाइबर एरर ये लेज़र फाइबर है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे इसमें भी अगर आपको आता है तो आप इससे भी बहुत अच्छे से रख सकते हैं। यहाँ पे इसको लेज़र फाइबर को सेफली रखना, क्योंकि ये इतना सा ही फाइबर जो है 20 से 23 हज़ार रुपये का आता है। कुछ कंपनी जो है टिप दूसरे देते हैं, हमारे इसमें इस मशीन में कंपनी में ये पूरा एक टिप इतना है, इससे आप कई सालों साल यूज़ कर सकते हैं इसको। कुछ लोग बताते हैं कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि जब यहाँ तक यूज़ हो जाता है तो इसके बाद इसको नहीं यूज़ कर सकते और इतना वेस्ट होता है। ऐसा कुछ कंपनी वाले बोल के अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो आपको जैसा लगता है वैसा देख सकते हैं। किसी कंपनी को ये नहीं करूँगा, ये लोग आए हैं तो इनके बारे में इस मशीन इसमें बता रहे कि पावर ओके, क्योंकि हम डायरेक्ट बैटरी से लगाएंगे, अगर हम इसके चार्जर से भी लगाएंगे किसी पे भी यूज़ करेगा तो उसका गलत तरीके से यूज़ करेगा और फिर आप ट्रबल में आ जाए। तो इसका कोड होगा इसका, मैं अंदाजन लगा रहा हूँ, मेरे मशीन का यूज मैंने चेंज नहीं किया था, चेंज कर सकते हैं उसको चाहे, ठीक है। तो ये इसका कोड है, इसमें ये पल्स मोड दिया हुआ है, ये कंटिन्यूअस मोड दिया हुआ है, मतलब इसमें मशीन लगातार ऑन रहेगी, लगातार लेज़र निकलता रहेगा इसमें से। ये पल्स मोड है, मतलब इसमें चॉप्ड फॉर्म में वेव्स निकलेंगे। टिप पे जो लाइट चलता है, जैसे कल मैंने बताया था आपको कि एक लाइट जलता रहता है, वो गाइडिंग लाइट है। उससे ये पता चलता है कि आप इसको कहाँ डायरेक्शन लोकेट करेंगे, कि आपको लेज़र तो दिखेगा नहीं आपके आंखों से, वो प्लेस जहाँ यूज़ करना है उस पर, हाँ जहाँ आपको लगाना है। देखिए मैं इसे छू रहा हूँ इस लाइट में, मुझे कुछ होगा नहीं, इस लाइट से आप कुछ होगा, लेकिन जब इसको एक्टिवेट करेंगे, जब आप फुट कंट्रोल दबाएंगे तभी लेज़र एमिट होगा इसमें से, और उस समय आपको डैमेज करेगा। इसको ऐसे करके लूज करके आप इसको अगर बाहर निकालना है तो बाहर ला सकते हैं। अगर आपको आरसीटी में यूज़ करना है तो आपको ये लेंथ मेजर करनी है अपने मेजरिंग ब्लॉक के ऊपर। जैसे आपका 20 मिलीमीटर का वर्किंग लेंथ है, तो आप इसको मेज़र करिए, ये 18, 17 या 16 ऐसा होना चाहिए। ऐसे 2 मिलीमीटर कम, 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर कम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये ऐसे कम करके और फिर उसको वहाँ पे टाइट कर देंगे। तो अगर आपने इसको टाइट कर दिया तो अब वो उसी लेंथ पे रहेगा, अब ये मशीन आगे पीछे नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको एब्लेशन में यूज़ करना है, कटिंग में यूज़ करना है, तो अब जितना बड़ा फाइबर रहेगा, अगर आप उससे कट करना चाहेंगे, इतने बड़े फाइबर से आप सोचेंगे कि इसको हम कट कर दें तो ये बेंड होगा बार, ये अच्छा नहीं है। ये बेंड होगा तो आप प्रॉपरली इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको लूज करके जितना शॉर्ट रहेगा तो उसकी स्ट्रेंथ है कि वो बेंड नहीं होगा इस तरह से, ठीक है। तो आप कटिंग कर सकते हैं इसको, ये एक चीज़ का ध्यान देना। इस मशीन को ऐसे रखना है, हाँ ये जो है ना
इसकी डेमो मशीन है, इसके ऊपर कनेक्ट हो जाता है और उसके ऊपर ये राउंड में वाइंड अप रहता है, तो ये भी टूट गया लगेगा। हाँ, ये देखिए यहाँ से पतला यहाँ से मोटा है, तो आप ऐसे करके ऐसे करेंगे ना, ये ठीक है। मशीन का बता दूँ मैं, ये प्री प्रोग्राम्ड मशीन है, इसके अंदर सब कुछ है, बस एक कंटिन्यूअस एमिशन वाला है, एक पल्स एमिशन वाला है। पल्स एमिशन वाले में क्या होता है कि जब भी बायोलॉजिकल टिश्यू को हम करते हैं तो कुछ देर के लिए वो एनर्जी इमिट करता है और फिर स्टॉप हो जाता है। तो जो लैटेंट फेज ऑफ एनर्जी है वो उसमें नहीं बनती है, बायोलॉजिकल टिश्यू में सेफ रहता है सराउंडिंग टिश्यू, जिससे हम वर्क नहीं कर रहे हैं। पर्सनलाइज डाटा आप इस तरह से करेंगे, इसमें अलग अलग चीज़ बना हुआ है। जैसे एंडो के यूज के लिए आपको कैनाल स्टरलाइजेशन, डिसेंसिटाइजेशन और कैविटी स्टरलाइजेशन। कैविटी स्टरलाइजेशन का क्या है? देखिए आप ही बैठिए, ठीक है, ठीक है। उसमें ये यूज कर सकते हैं, उसमें भी एक कटिंग में यूज करके डालेंगे तो पल्प नेक्रोज हो जाएगा। जो थोड़ा अगर रेसिड्यू रह गया स्टार्टिंग में कर सकते हैं आप, लेकिन आपका प्रिंसिपल क्या है? क्लीनिंग करना, मतलब सॉफ्ट टिश्यू को निकालना प्रिंसिपल है कि कैनाल को स्टरलाइजेशन करना प्रिंसिपल है। कैनाल का स्टरलाइजेशन तब होगा जब आप मैकेनिकली और केमिकली आपने उसको पहले से थोड़ा सा भी इन्फेक्शन उसमें रह गया तब तो फिर वो काम ही नहीं करेगा। इरिगेंट होना ही चाहिए, क्योंकि इरिगेंट के थ्रू ही ये वर्क करेगा। इसमें सिर्फ हाइपो के अलावा और भी कोई इरिगेंट रह सकता है? सोडियम क्लोराइड बेस्ट है, इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव? हाँ, पॉकेट स्टरलाइजेशन, जिंजर कंट्रोलिंग, जिंजरेक्टोमी, सारा बना। जिंजरोप्लास्टी कर सकते हैं आप, कुछ भी ग्रोथ है तो एब्लेट करते रहिए। ट्रफिंग, आपको अगर कम लेंथनिंग करना है, इंप्रेशन करना है तो जिंजर ट्रफिंग करिए। इस सब का टाइमिंग क्या रहेगा सर? वही दो चार सब प्री प्रोग्राम्ड है। टाइमिंग क्या, आपने ये प्रिसाइज कटिंग करते हैं तो इसमें टाइमिंग का कुछ नहीं है, बस प्रोग्राम सेट करिए, प्री प्रोग्राम है और आप वर्क करिए। जितना आपको चाहिए उतना टिश्यू हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। बॉट वगैरह हाइपोक्लोराइड है 3% हाँ, तो उसका भी कुछ इसमें पोजीशन नहीं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप ऐसा कुछ नहीं तो कुछ टाइम सेट करने की जरूरत नहीं होती है। वॉट सब सेट है, जैसे आपने मान लीजिए कंट्रोलिंग करना है, दवाई यूज करते हैं 2 वॉट पे वर्क करें, ये सेट है। पल्स चाहिए कि कंटिन्यूस मोड चाहिए, वो डिसाइड करिए आप। नए बिगनर्स हैं तो आप पल्स मोड पे काम करिए, ज़्यादा अच्छा। सेट हाथ है तो कंटिन्यूस मोड पे काम करिए, और इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। सब कुछ चेक करेगा और जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये रेडी हो जाएगा, ये अपने आप रेडी हो जाएगा। तभी एमिट करेगा जब मैं दिखाऊंगा जब। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। सर्जरीज में आप कहाँ कर सकते हैं? फ्रीनेक्टोमी कर सकते हैं। ऑर्थो के लिए बैंड अगर आ गया डायस्टोमा के बीच में, आप कितना भी प्रेशर दीजिए वो फिर से रिलैक्स हो जाएगा, वो बैंड को निकाल दीजिए, ठीक है। फिर आपका वेस्टिबुलोप्लास्टी, कोई डेंचर का केस है, कोई इंप्लांट का केस है, वेस्टिबुलोप्लास्टी करना है, डीप करना है, उसको अटैचमेंट ज़्यादा है, उसका म्यूकोजिंजिवल जंक्शन पे अटैचमेंट ज़्यादा है तो उसको कट करके डीप ले जाएंगे, डीप में फ्लैबी टिश्यूज वगैरह को भी फ्लैबी टिश्यू बहुत इजीली हटा सकते हैं, डेंचर में बहुत इजीली हटा सकते हैं और तुरंत इंप्रेशन भी ले सकते हैं। फाइब्रोमा बहुत इजी और ब्लड सबसे बढ़िया तो बोलना है कि ब्लडलेस, एक भी ब्लड का कोलेक्टोमी में भी तो ओपर कोलेक्टोमी बहुत इजी, कल दिखा रहे मैंने वीडियो ओपर कोलेक्टोमी। नेक्स्ट सर्जरीज के कुछ मिकोसील है। मिकोसील में थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है क्योंकि ना एसेसरीज सलाइवरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा होते हैं, 800 से 1000 एसेसरीज सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो आप एक पे कर रहे हैं तो बगल वाले को भी डैमेज कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उसमें सर्जिकल ज़्यादा होता है, ब्लीड हो तो आप उसको ब्लीड को रोक दीजिए, असिस्टेंस के रूप में इसका इस्तेमाल करिए, ब्लेड से निकालिए, असिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल करिए, वो ज़्यादा अच्छा। फिर आप टिफाइस हटा सकते हैं, एक्सीजन देना है तो एक्सीजन के लिए तो है ही है। साइनस ट्रैक, एक्स्ट्रा ओरल साइनस आ गया तो किसी लोग खींच के फिर उसको असेप्टिक करिए, तो वो आपको सपोर्ट करेगा हीलिंग के लिए। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्पैक्टेड टिप आप इसे कट कर सकते हैं, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, कट करिए, फ्लैप को रिफ्लेक्ट। लेकिन कट के लिए तो फिर हार्ड टिश्यू, हार्ड लेजर यूज़ करना होगा। नहीं इम्पैक्ट बोन कट करने के लिए नहीं, सॉफ्ट टिश्यू Soft tissue। कट करने बोन कट उसके तो हम
पीजो सर्जरी यूज़ करते हैं, पीजो सर्जरी यूज़ करते हैं। पूरा मेलानिन पिगमेंटेड है, पूरा ऊपर जिज्ञासा, खाली एब्लेट करना है और स्ट्रोक में इस पे करना है। स्ट्रोक पे करिए और पल्स मोड पे करिए। डिपिगमेंटेशन डीप नहीं जाना जा रहा। सर ये फोरहेड ब्लैक जो हो जाता है फोरहेड ब्लैक नहीं, मैं इंट्रा ओरल की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ओरल की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, सब इंट्रा ओरल की बात कर रहा हूँ। मतलब जिंजावा ब्लैक जो हो जाता है वो कर सकते हैं, ब्लैकनिंग हो जाता है। लिप भी किसी का ब्लैक लिप क्लीन भी कर सकते हैं, लेकिन वो एस्थेटिक जोन है ना, एस्थेटिक जोन पे वर्क करने से बचना चाहिए। एस्थेटिक जोन तुरंत नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट लिप को करवा रहा है तो क्यों करवा रहा है, क्योंकि उसको एस्थेटिक से कंसर्न है। अगर आपसे कुछ भी फॉल्ट हुआ, थोड़ा भी डीप गया तो डंडे लेके आएगा, आ जाएगा तो और बेकार हो जाएगा, आप अच्छे करने के लिए खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सा बचना चाहिए। प्रैक्टिस करते करते अगर होता है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इंट्राओरल पिगमेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं? इंट्राओरल पिगमेंटेशन यूज़ करते हैं। आप रेड कलर हो, ब्राउन कलर हो, ब्लैक हो, वाइट हो, कुछ भी कलर हो, आप सब जगह यूज़ कर सकते हैं। ब्लड लीजन्स है जो फॉर्मेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा हम छोटा सा भी कट मारेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ट्रिक्स भी बताते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हो, उसमें वेल कॉन्फिडेंट होकर काम करिए। कुछ भी लीजन है, ऐसे जगह के ऊपर, टंग के ऊपर रेड और ब्लैकनिंग रहता है, ब्लैक आपको, आप ब्लेड तो नहीं लगा सकते हो, तो डर ही है। इससे करिए, वो अपने आप हेमोस्टैटिक भी काम करेगा और लीजन पूरा निकाल देगा। सेंड इट फॉर द बायोप्सी और कंफर्म करिए कि वस्कुलर लीजन है कि नहीं। अगर केस में भी अगर आप सर्जरी नहीं करना चाहते हैं तो उस पार्ट को, जो लाइसिंग पार्ट है, उस पार्ट पे ऐसे लगा के आप ऐसा रोक सकते हैं। इंट्राओरल, वो इंट्राओरल करना है। अल्सर्स है कोई भी, उस अल्सर के ऊपर ऐसा लगा के ऐसे कर सकते हैं, अल्सर के ऊपर भी कर सकते हैं। सब अलग अलग इसके फ्री प्रोग्राम दिया हुआ है। वो अल्सर को आप इसके पीछे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। किसी भी पेन के लिए आप फोटोबायोलॉजी से इससे कटिंग और वो अच्छा है। फिर आप ब्लीचिंग के लिए दूसरा यूनिट दिया हुआ है इसमें। हाँ, एक सिटिंग में ही आराम होगा उसको, लेकिन आप पेशेंट का जो रिक्वायरमेंट, जो सीवियरिटी है, ऐसा इंटरवल का तो कुछ नहीं है। पेशेंट को जब आप बुला लीजिए, हाँ, 3 दिन पे बुला के करिए, 3 दिन पे बुला के करिए उसको, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी देना ज़रूरी होता है ना। तो अपने आप बायोलॉजिकली खुद भी एक्टिव होना चाहिए, थोड़ा टाइम देखिए, आराम मिलता है। ये ब्लीचिंग पूरा एक क्वार्टर फिक्स करेगा। ब्लीचिंग जेल अप्लाई करके लगाइए, उसके ऊपर लिक्विड डैम लगाइए जिंजावा के पास, उसके ऊपर फिर आप जो क्रोमोफोर इंड्यूस्ड जो जेल आता है ब्लीचिंग जेल, वो यूज़ करिए, उसको लगाइए एनिमल के ऊपर। उसके बाद फिर लगाइए, क्योंकि जो विदाउट इसके अगर करेंगे तो जो टाइम लेगा उसका 1/3 टाइम इससे लगेगा। मतलब तुरंत एक्टिव करता है, तुरंत क्लीन करता है। ऑफिस ब्लीच के लिए सबसे बेस्ट है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सारा डिसेंसिटाइजर के लिए भी कर रहे हैं, डिसेंसिटाइजर के लिए कर सकते हैं। मतलब वहाँ 20 सेकंड रखना है, हाँ, लॉक कर तो ये इसका टेक्निक है। इसमें जो है जब भी आप काम करेंगे तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट्स के लिए अलग है, अपने डॉक्टर्स के लिए अलग है, सबके प्रोटेक्टिव ग्लास हैं। 2 ग्लासेस देते हैं ना आप लोग? हाँ, 2 प्रोटेक्शन पेशेंट्स लगा रहे हैं, वो कैसे इसके ऊपर ही लगा लिया, दिखता है ना पूरा, आराम से कोई मतलब डॉक्टर, पेशेंट और असिस्टेंट तीनों ने पहना चाहिए। 2 तो देते हैं हम लोग, 2 देते हैं, एक ब्लाइंड देते हैं पेशेंट के लिए। देते हैं, आप 1-2 और खरीद के रख लीजिए असिस्टेंट को लगाने मतलब के हो गया, इसका कुछ स्पेसिफिक नेम होता है? हाँ, ये हर मशीन के साथ अलग मिलता है। ये ग्लासेस इसके साथ क्या? इसके साथ आते हैं, लेकिन आप जो है ना जिस कंपनी की मशीन खरीदेंगे उसके लिए वो अलग मिलेगा। 4 वाट का लेजर प्रोटेक्टिव ग्लासेस। अच्छा सर, ये क्या कहते हैं, मतलब प्रोटेक्शन के तौर पर सिर्फ चश्मा ये और कुछ कितने हैं? हाँ, इसमें देखिए, वो जिस वेवलेंथ का आप यूज़ करेंगे उस वेवलेंथ के हिसाब से इसके ऊपर ग्लास पे लिखा हुआ है, उसी वेवलेंथ का प्रोटेक्टिव ग्लास यूज़ करेंगे। सिर्फ आँख को ही प्रोटेक्ट करना है और बॉडी को? आँख की आई सेफ्टी है, बॉडी को बॉडी की है, क्योंकि जो हमको
नॉमिनल हजार्डेड जोन जो है वो 6 फीट के आसपास होता है अप्रॉक्सीमेट, अलग अलग मशीन का अलग अलग होता है, पर 6 फीट डायोड लेजर का मान के चलते हैं। उसके बाद जो है अगर उससे दूर कुछ खड़ा है तो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। और जैसे ये मशीन चल रही है तो इसका स्ट्रेट मूवमेंट है, तो अगर आप इधर खड़े हैं या इसके पीछे खड़े हैं तो आपको उतना वो भी नहीं करेगा। एक्सरे सील्ड अच्छा सर, कॉन्ट्राइंडिकेटेड कोई पेशेंट, उससे कोई मतलब उसका जो सर कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई नो तो उसके लिए से प्रेग्नेंट वुमन, प्रेगनेंसी, बेसिकली आई को सेव करने के लिए देते हैं बस आई प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट है। प्रेगनेंसी में समटाइम देखते हैं सर हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वैसे तो 380 का है, ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा लेकिन अभी 350 में हम लोग दे रहे हैं 10 EMI पे है, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं। EMI पे अवेलेबल वहाँ अगर नहीं। सॉरी सर, वहाँ अगर ज़्यादा वो बात करेंगे बहुत से जो भी हो। उसके पल्प में ये लेजर दिखा के उसको उसका पेन रिलीफ 3,50,000 रुपये। जैसे कैरियर इसमें 8 वाट भी आ रहे हैं, वो 2,50,000 का सेम काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ प्रेगनेंट है, हम एक्सपेक्ट नहीं करना तो हम सेक्शन से जाना ही नहीं चाहिए। जी मान लीजिए ऐसे हमेशा कंजर्वेटिव तो कोलेजन फाइबर डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, उस डिस्ट्रक्ट करने के लिए आपको कंडीशन इंप्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर लाइकोपीन लेना रहेगा, आपका इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना रहेगा, जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसको अवॉइड करना रहेगा, फिर लेजर का सपोर्ट देकर उसको फोटो बायोमॉड्यूलेशन करना है ताकि हमारी कोलेजिनेज एक्टिविटी बढ़ जाए और फाइबर जो बन रहा है उसको डैमेज करने लगे, तब जाके ये आपको फायदा करेगा। अच्छा सर, ये जो रखे हैं ये मैं बता रहा हूँ, डेमो करेंगे आप लोगों के साथ, कैसे डेमो किया जाएगा सब लोग। जो वेजिटेरियन है वो ये सारे कलरफुल क्यों लिए गए हैं, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स हैं। ये रेड कलर का पिगमेंट, जैसे मैं कल बता रहा था कि डायोड लेजर जो है मेलानिन और हीमोग्लोबिन पिगमेंट पे काम करता है। अगर आप ऐसे जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे पिगमेंट्स नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पिगमेंट्स नहीं लिए हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पिगमेंट नहीं लिए हैं, तो वो वहाँ पे ये नहीं डैमेज करेगा, उस बैक्टीरिया को नहीं खत्म करेगा। तो जो बैक्टीरिया जो पिगमेंट लेते हैं उसी बैक्टीरिया को ये डैमेज करेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो जैसे ये रेड है, इसका है स्किन, इसके ऊपर हम इसको निकालेंगे। ये पिगमेंट्स हैं, ये इसमें ब्लड वेसल्स रहते हैं सारे, इसमें पिगमेंट्स हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रेस करेंगे, प्रोटेक्टिव ग्लास पहनना जरूरी है, मुझे भी ज़रूरी है, जो मेरे सामने बैठा उसको भी ज़रूरी है। हाँ, पेशेंट को पहना दी तो पेशेंट को दिखेगा नहीं, खाली आवाज़ सुनाई देगी, थोड़ा अच्छा लगता है उसको, आवाज़ सुनाई देती रहती है, उसको काम हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा कुछ। इसमें तो सर कांटेक्ट करना है। जिनको भी कांटेक्ट करना है, नीचे ये रेडी करना है, ये रेडी करना है अपने को, रेडी करना है। ये आवाज़ आ रही है, देखिए मैं जानबूझ के इसको ऐसे रखा हूँ, ना उधर किया हूँ ना इधर किया हूँ, ऐसे कुछ नहीं किया हूँ, मैं जानबूझ के इसको ऐसे रखा हूँ। जैसे रिवॉल्वर बंदूक लेके चलते हैं ना लोग, ऐसे नीचे लटका के चलते हैं, उसका नाल नीचे लटका के चलते हैं, बिहार यूपी में हर जगह। हाँ, ऊपर लटका के कहीं लड़ हो गया किसी को दिक्कत है। तो अब इसको ऐसे दबाएंगे, आवाज़ आ रही है, एक्टिवेट करना पड़ेगा क्या इसको? नहीं चल रहा है। हाँ, ये देखिए, ये कंटिन्यूसली चला रहा हूँ मैं, कंटिन्यूस मोड पे चला रहा हूँ, लगातार एमिट कर रहा है इसको। प्रिसाइज कटिंग देखिए, और ये स्मेल जो आ रही है ना, ये प्ल्यूम फॉर्म, ये जो निकल रहा है ये प्ल्यूम फॉर्म हो रहा है। इसके लिए इवैक्यूएशन सेक्शन चाहिए होता है, क्योंकि एयर कंटेमिनेट करने का डर रहता है, इसमें बैक्टीरिया होते हैं, स्मेल आती है, मास्क पहनना ज़रूरी होता है जब आप ऐसे कट करते हैं। मतलब पेशेंट में यूज़ करते टाइम इवैक्यूएशन सेक्शन में, हाँ, सेक्शन हाई इवैक्यूएशन सेक्शन चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास फ्रीज़र हो तो आप इस स्किन को निकाल सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसकी कटिंग हो गई कि नहीं। अगर इसका स्किन निकलेगा तो मतलब आपने प्रॉपर कटिंग जहाँ तक ले जाना होता है। डीप ले जाना है तो स्ट्रोक वाइज आप इसको डीप जाते जाइए।
सेम ऐसा ही चावल गलती है हमारे हाँ, ये टूथ वाला फोर्सेप है। अगर टिश्यू फोर्सेप रहेगा तो ये पूरा निकालेगा। देखिए ये हमारा स्किन पार्ट निकल गया या एपिथेलियम पार्ट निकल गया था, क्योंकि हमने एपिथेलियम में किया। अगर हमको लगता है कि वो कनेक्टिव टिश्यू पार्ट में गया है तो आप थोड़ा सा और स्ट्रोक लगा के इसको और डीप जाएंगे तो जितना स्कर्ट करने से ये हट जाएगा, टिश्यू हट जाएगा, आपको स्कर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, ये हट रहा है, ये ऐसे हट रहा है। और ये जो पोर्शन है ना, इसको गॉस पीस से जब आप करेंगे तो आराम से हट जाएगा। इसका पूरा हट जाएगा। अगर पीस काट के निकालना हो पीस काट के निकाल, ग्रोथ है जैसे कोई ग्रोथ निकला है अब ये समझिए कि ये लेजर बायोप्सी भी हो गया एक तरीके से लेजर बायोप्सी हो गया। ये फाइब्रोमा निकाल रहा है, मान लीजिए, ये देखिए स्ट्रोक मेथड से करना है। इसमें प्लस पॉइंट ये है सर कि ब्लीडिंग ज़रा सा वही बात है ना, वही तो प्लस पॉइंट। आप ब्लड से ही तो लोग डरते हैं सर, खून निकली का, दुखाई का, सुन भी करने की जरूरत नहीं है, खून निकली का, दुखाई का। अच्छा, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इसके लिए सरफेस एनेस्थेसिया कभी कभी जरूरत नहीं। पहले नॉन कॉन्टैक्ट मोड में घुमा देंगे ना तो एनेस्थेसिया देने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद मेडिकेशन ये इसको करनी भेज दीजिए बायोप्सी करने के लिए। और इसका मेडिकेशन, हाँ, इसका मेडिकेशन ये लीजन आपने हटा दिया। मेडिकेशन जरूरत नहीं है, यहाँ से ठीक है। बैक्टीरिया का कोई कंटामिनेशन नहीं, कोई ब्लड नहीं, कुछ नहीं